please write the heading down in your book, muscular system. Okay, muscular, muscular. Anyone, what does it mean? किससे? भैया ये साइंस है ना? Yes, it's science. किससे लेना देना होगा? Muscular. Anyone? With muscles. Excellent. It's related to muscles, right? So muscles के बारे में पढ़ने वाले हैं. We're going to study about muscles. Please write down muscular system. Let's continue. We'll recap first. पहले हम लोग cell के बारे में पढ़ेंगे, which we have already studied before. We have already studied before. What are cells? Can someone read about cells? कोई पढ़ना चाहेगा? Please raise hands. Thank you, Diksha. Please read, Diksha. Recap. Cell. All living things are made up of cells. Some living things like bacteria are made of one cells and called unicellular organisms. Some living things like humans are made of many cells and are called multicellular organisms. Right. Thank you so much. Okay, so I will quickly go through. All living things are made of cells. सारी जो भी चीजें जो जिंदा है वो किससे बनी है? छोटे छोटे सेल्स से. ओके, दे आर मेड आउट ऑफ सेल्स. ये एक सेल का पिक्चर है. ओके, बहुत छोटे होते हैं, हम देख नहीं पाते, बट हम भी सेल से बने. ओके, सम लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह होते हैं, वायरस होता है, ऑल ऑफ दीज आर मेड ऑफ वन सेल. वो बस एक सेल से बने. ओके, एंड दे आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स, सेल्यूलर मतलब जो सेल से बना है. ओके, एंड यूनी का मतलब वन, यूनी का मतलब वन. ऑलराइट, so let me quickly do that over here. I should have written that before, but I'll quickly write it down. So once again, unicellular, right? Give me 1 minute, please. Okay. भैया ये लिखने का? Yeah, I'll give you time to write. Don't worry. Uni means anyone? Uni means? Uni means one. Very good. Means one. Okay. Cellular? बहुत सारे. Made of cells. Made of cells. जो cell से बनी है. Organisms? भैया No. Living things. Organisms are living things. Okay. Similarly, multicellular. Multi means many. Okay. So यूनिसेल्यूलर का मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म वन सेल से बने, जो भी लिविंग थिंग्स वन सेल से बने, दे आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेल्यूलर मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बने. ओके, मल्टी मींस बहुत सारे. ओके, प्लीज राइट इट डाउन इन योर बुक. यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर. एग्जांपल है बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर का, मल्टीसेल्यूलर का. यस, सिद्धिका है. प्लांट एंड एनिमल सेल्स. ओके, आप देख सकते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल. कैन एनीवन टेल क्या क्या आपको फर्क दिख रहा है दोनों में? कैन एनीवन टेल सम डिफरेंसेस दे कैन सी? In the plant cells there are some parts of green color, and in animal cell there is nothing of green color. वेरी गुड. जो ग्रीन कलर के पार्ट्स है प्लांट सेल में, दे आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. वो एनिमल सेल में नहीं है. इट इज नॉट देयर इन एनिमल सेल. ओके, सादिका सिद्धिका, व्हाट अदर डिफरेंस कैन यू सी? और क्या फर्क दिख रहा है आपको एनिमल के सेल में और प्लांट के सेल में? भैया एनिमल के सेल्स में ना ये जो रिबोसोम्स है ना वो ज्यादा है. Okay, ribosomes are more. All right, that's a good observation. Okay, so you can see there are more ribosomes here. Okay, and there are fewer. Okay, good. और भैया शेप भी अलग है. हाँ, shape very good. Okay, plant cell का shape बहुत fixed होता है. Plant cell का shape बहुत fixed होता है. ये ग्रीन है ना. One second. Plant cell का shape क्यों fixed होता है? Because उसमें cell wall है. Because it has cell wall. Okay. सो शेप जो है प्लांट सेल का वो बहुत ही मतलब फिक्स होता है. एनिमल सेल में भी शेप्स फिक्स होते हैं, बट थोड़ा मतलब अलग इधर उधर हो सकता है. व्हाई? बिकॉज उसमें सेल वॉल नहीं है. यस दीक्षा, यू वांट टू से समथिंग? There is vacuole in plant cell, not in animal cell. Excellent. There's a vacuole and in a plant cell, but animal cell में नहीं है. Another reason why जो plant cell का जो shape है वो थोड़ा fixed रहता है, because उसमें vacuole होता है. Okay. So and in plant cell there is a cell wall and there is no cell wall in animal cell. Very good. Okay. So ये तीन चीजें हैं. Plant cell has cell wall, animal cell does not have cell wall.
Plant cell has vacuole, animal cell does not have vacuole, and plant cell has chloroplast, animal cell does not have chloroplast. Chloroplast से green color मिलता है, which helps in photosynthesis. Plant अपना खाना खुद बनाता है ना photosynthesis से. We have done this long time ago, अगर किसी को याद होगा. Okay. और भैया हाँ. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया. हाँ, तो भैया वो है ना, ये जो एनिमल्स है ना, तो उसमें ज्यादा और प्लांट्स में कम है. Yes, mitochondria are more in animals. क्यों? क्योंकि animal cells में ज्यादा काम होता है. Already you would have seen, right? And plants हिल डुल सकते हैं. Can plants move around? No. है ना, but animals move around कर सकते हैं, है ना, उनमें ज्यादा मूवमेंट होती है. और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, एंड माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिए एनर्जी जनरेट करती है. क्या जनरेट करती है? एनर्जी, है ना. सो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा एनर्जी. ऑलराइट भैया. यस. ये जो देखो प्लांट्स पे इधर, ये जो देखो ये वाला है स्किन कलर का, तो भैया वो है ना ऊपर से है प्लांट्स के, और है ना ये जो एनिमल्स के स्किन पे नहीं है. वेरी गुड. और उसका नाम क्या है? सेल वॉल. उसका नाम क्या है? सेल वॉल. सेल की एक दीवार होती है प्लांट सेल में, ओके, बट एनिमल सेल में वो सेल वॉल नहीं होती. ऑलराइट, बट लाइक वी सेड माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, कम है. क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में मूवमेंट ज्यादा होती है. एनिमल्स की मूवमेंट्स होती है, प्लांट की मूवमेंट नहीं होती इतनी. तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, किसको चाहिए? एनिमल्स को चाहिए. ओके, सो इट हैज मोर माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी जनरेट करता है. जो खाना मिलता है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया उसको तोड़कर हमारे लिए एनर्जी निकालता है. ओके, लेकिन भैया वो ऐसे हलते हैं ना. क्या? खुद से ना क्या? भैया वो जो प्लांट्स रहते हैं तो वो So let's look at this. Look at the size of cells. ये हम already पहले देख चुके हैं ऐसा वीडियो, but I just want you to see it again and understand cell कितना बड़ा होता है. इंसान, फिर ओके, हमिंग बर्ड सबसे छोटा बर्ड, मैच स्टिक तो सबको पता है, ओके, कॉइन, ओके, मार्बल, ओके, राइस, ग्रेन ऑफ राइस, एंट, कीड़ी, मकोड़ी, सॉरी, I don't know what you call it, चीटिया. ओके, ये होता है, ओके, ये होता है तुम्हारा स्किन सेल. स्किन का जो सेल है, ये रेड ब्लड सेल, ओके, ये क्लोरोप्लास्ट अभी हमने देखा, ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया. Everyone can see the different sizes. ये वायरस कितने बड़े होते हैं, देखा सबने. Alright, so we could see that cells are really small. सारी जो cells है बहुत छोटे हैं. We can see it again one last time. Please see carefully. Russia's teapot. Chicken egg, अंडा, ओके, उससे भी छोटा. भैया ये स्लिट क्या है? सॉरी, स्लिट मतलब? स्लीट मतलब कहाँ पर? ओ स्लीट, आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज एक्चुअली. दैट्स अ गुड क्वेश्चन. मुझे नहीं पता वो क्या है स्लीट. डकवीड इज द स्मॉलेस्ट प्लांट. अभी सबने देखा डकवीड, यहाँ पर आएगा, सी लेफ्ट साइड में सबसे छोटा प्लांट है वो. यस भैया, ग्रीन ग्रीन वो क्या है? विच वन? वो डस्ट मीट. डस्ट माइट, वेरी गुड. डस्ट माइट क्या है? ओके, ये एक छोटा सा एनिमल होता है जो डस्ट में पाया जाता है, जो आपके बेड में भी पाया जा सकता है. ओके, उसको डस्ट माइट कहते हैं. ओके, और भैया ये एमोइबिया, अमीबा, से ना एक टाइप का. हाँ, एक टाइप का, हाँ, एक टाइप का जर्म बोल सकते हो आप फिलहाल. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है वो वन सेल है, सिंगल सेल बोलते हैं उसको. ओके, ओके. ह्यूमन हेयर का विथ, मतलब आपका जो बाल है वो अगर उसका विथ देखोगे, लंबा नहीं, कितना चौड़ा है, वो ह्यूमन हेयर विथ आप देख सकते हो. तो स्किन सेल कितना छोटा है, देख रहा है स्किन सेल? यस भैया. भैया यस. वो ह्यूमन एग क्या था? ओ, ह्यूमन एग क्या है? वेरी गुड. सो सबको पता है, राइट? हाउ डू यू गेट अ चिकन? हमें चिकन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम एग. फ्रॉम एन एग, राइट? बस ह्यूमन भी एग से आते हैं. ओके, बट एग किसके अंदर होता है? लाइक गर्ल्स के अंदर ह्यूमन एग होता है. ओके, सो ह्यूमन एग से क्या बनता है? बच्चे बनते हैं. दैट्स अबाउट इट. विथ ऑफ सिल्क फाइबर, सिल्क रेशम के कपड़े जो होता है, आई थिंक रेशम बोलते हैं इन हिंदी, आई एम नॉट श्योर, बट सिल्क फाइबर. ओके, एंड यू कैन सी क्लोरोप्लास्ट.
कि काफी बड़ा है थोड़ा सा। ब्लड सेल, ओके, सेल न्यूक्लियस, रेड ब्लड सेल जो खून का सेल है, व्हाइट ब्लड सेल। ऑलराइट भैया ये सेल न्यूक्लियस तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी था। हाँ करेक्ट, देखो ना सेल तो सेल के अंदर भी सेल होता है। सो सेल न्यूक्लियस इज नॉट अ सेल, ओके, वो सेल का पार्ट है। लाइक स्किन सेल दिख रहा है सबको यहाँ ऊपर, कैन एवरीवन सी इट हियर, स्किन सेल? यस। हाँ, सो उसका Yes. पार्ट क्या है? ये न्यूक्लियस, ये जो पर्पल वाला है वो उसका न्यूक्लियस है। तो वो लोग बस बता रहे सेल का जो न्यूक्लियस है वो कितना बड़ा होता है ज्यादातर। भैया what is that whip? व्हाट इज द TWIP whip. गुड क्वेश्चन, मुझे नहीं पता ट्विप क्या है। अरे सॉरी, आई डोंट नो व्हाट ट्विप इज। भैया सर्च फॉर इट आफ्टर दिस। यस बेटा, व्हाट एल्स? मिस्ट ड्रॉपलेट क्या है? सॉरी, मिस्ट ड्रॉपलेट। मिस्ट ड्रॉपलेट, ओके, मिस्ट ड्रॉपलेट क्या है? व्हाट इज मिस्ट? मिस्ट इज क्या आपने कभी देखा है, आप बाहर गए और बहुत ऐसे धुआं धुआं जैसा है, ओके? यस। उसको क्या बोलते हैं? उसको फॉग बोलते हैं। Yes. गीला गीला धुआं होता है ना, जब वो धुआं धुआं फॉग, फॉग बोलते रेडी। करेक्ट। एंड व्हेन, हेलो, जस्ट भैया उसको कुएसा और शबनम भी बोलते हैं। जो भी है, बट एनीवे इट इज कॉल्ड फॉग। एंड जब वो थोड़ा गीला गीला लगता है, राइट, हम बाहर जाते हैं और धुआं गीला लग रहा है हमें, ओके, ज्यादातर हिल स्टेशंस में, पहाड़ी इलाकों में, ओके, तो उसको हम मिस्ट बोलते हैं। और मिस्ट का एक जो ड्रॉप होता है ना, वो एक ड्रॉप मिस्ट का वो ऐसा इतना बड़ा होता है। राइट, कंटिन्यूइंग। ओके, एंड दिस इज ऑल स्मॉलर वायरस, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ये तो आप फ्यूचर में पढ़ोगे, ये सारे वायरस देख लो। ओके, लार्जेस्ट वायरस, सबसे बड़ा वायरस ये है, ओके, एंड HIV वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, अलग अलग टाइप के वायरस है, ओके, और ये DNA, एंड दैट्स अबाउट इट, एंड विल कीप गोइंग, और छोटा छोटा होता जाएगा, ओके, देन वी कैन सी एटम, बट वी विल स्टॉप हियर, यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं। ओके, सो दिस वाज द साइज ऑफ सेल्स, देखा कितने छोटे होते हैं सेल्स, एवरीवन सॉ इट, राइट? सो लेट्स मूव अहेड। all parts of our body are made of different types of cells, okay, so ये मसल के सेल ऐसे होते हैं, blood cells ऐसे होते हैं, okay, nerve cells are like this, sperm cells are like this, skin cells are like this, अलग अलग तरह के cells से अलग अलग parts बनते हैं हमारे body के, alright? We'll be studying about muscles. आज हम लोग muscles के बारे में पढ़ेंगे। Can anyone read? कोई पढ़ना चाहेगा? भैया कैन आई रीड? You'll have to raise your hand for it, and yeah, you can read, Sadhika or Siddhika, whoever asked. भैया can Palak, I'll give you a chance next time. Diksha, you read in the previous one, no? Let's come on, Sadhika, Siddhika, please read. भैया इसके बाद मैं रीड करूं? Bundles of fibers that can contract and relax. Muscles help move our bones and body. They are attached to bones by tendons. When muscles contract, movement occurs. All movements require muscles. Alright, so in our bodies, हमारे बॉडी में मसल्स होते हैं जो हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं ना। कैसे हेल्प करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो, व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कम क्लोज एंड बिकम शॉर्ट, जब वो छोटे बन जाते, देखो यहाँ पर, और एक बाजू एक साथ आ जाते हैं, जैसे यहाँ, तो क्या होता है, तो वो बोन नीचे से खिंच रहा है, यू कैन सी, अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे मसल्स, अब रिलैक्स हो रहे, व्हेन दे आर गोइंग रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट और ये रिलैक्स हो रहे हैं, ओके, सो व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मूवमेंट होता है, ओके, व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मूवमेंट ऑकर्स। ऑल मूवमेंट, छोटी सी छोटी मूवमेंट आपके बॉडी में हो रहा है, आप आंख ब्लिंक कर रहे हो, यू आर ब्लिंकिंग योर आईज, दैट इज आल्सो बाय मसल्स, ओके, कुछ भी लिफ्ट कर रहे हो, कुछ भी उठा रहे हो, आपके हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, चल रहे हो आप, एवरीथिंग इज बाय मसल्स, ओके, एंड ऑफ कोर्स ऑल मूवमेंट हैपेंस बाय मसल्स। हम लोग और ज्यादा पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज राइट दिस इन योर बुक, प्लीज राइट दिस। ड्राइंग अभी नहीं करना, मैं बाद में ड्राइंग दिखाता हूँ आपको। होता है कॉन्ट्रैक्शन, यू कैन सी, रिलैक्सेशन कैसा होता है, मूवमेंट नहीं होती, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब मसल छोटा होता है और मोटा हो जाता है, ओके, छोटा होके मोटा हो जाता है, सारे मसल के सेल्स एक साथ पास में आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन,
और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट हो रही है. यू कैन सी इट राइट, काफी विजिबल है. रिलैक्स लंबे है, कॉन्ट्रैक्ट छोटे हो गए. ओके भैया ये जब हम बैठते हैं जब वो मत Types of muscles: voluntary muscles, involuntary muscles, cardiac muscles, and smooth muscles. Thank you, Palak. So there are two types of muscles. दो major type of muscles है, voluntary muscles, okay, and involuntary muscles. और involuntary के भी दो types है. कौन से? Cardiac muscles और smooth muscles. Okay. So वापस करते हैं. There are two types of muscles. दो type के muscles है, voluntary और involuntary. Involuntary के दो types क्या है? Cardiac and smooth muscles. Please write this down in your book. Please write this down in your book. यस भैया. Madhya, you want to read this one? Yes, भैया. Yes, please read. Voluntary muscle Voluntary muscles. Voluntary muscles. voluntary muscle और stacle muscle. These are muscles and Hello. movement. Oh, Madhya, this is skeletal. Skeletal muscle. Okay, good. These are muscle and movement that we can control. They are attached to the skeleton. Example, hand, leg, etc. Okay, so all the muscles in hands, legs जो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, जो मूवमेंट आप कंट्रोल कर सकते हो खुद के दिमाग से, they are skeletal muscles और voluntary muscles. Okay, example hand muscles of hands या hand muscles. Okay, या फिर लेग के मसल्स जो होते हैं. काफी इजी है. ऑलराइट, प्लीज सी यहाँ पर स्केलेटल मसल्स कैसे दिखते हैं. ओके, सी हाउ दे लुक. प्लीज. भैया यस. Cells whose movements we cannot control. They are for functions essential for life like breathing, digestion, pumping blood, etc. Example: heart, lungs, stomach. Good. Muscles of heart, muscle of lung and stomach, right? So जो भी मूवमेंट्स हमारी बॉडी में हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ओके, जो ज्यादा हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ओके, उसमें कौन से मसल्स होते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं. एग्जाम्पल हार्ट, लंग, स्टमक, एक्सेट्रा. ये मूवमेंट्स जरूरी होती है हमारे फंक्शन के लिए. ये हमारे लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए ये मूवमेंट्स एसेंशियल होती है. एसेंशियल मतलब नीडेड, कंपलसरी, जरूरी. ओके, जैसे कि ब्रीदिंग, सांस लेना, डाइजेशन है ना, खाना जो डाइजेस्ट होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड, जो हार्ट ब्लड पंप करता है हमारे पूरे बॉडी में. ये कौन से मसल्स होते हैं? दिस हैपेंस थ्रू इनवॉलेंट्री मसल्स. ओके, वॉलेंट्री मतलब कंट्रोल में है हमारे, इनवॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है. दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल. प्लीज राइट इट इन योर बुक. प्लीज राइट दिस. इनवॉलेंट्री मसल्स का पहला टाइप कार्डियक मसल्स. फर्स्ट टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स कार्डियक मसल्स. भैया फिर तो क्यों लिखे है इधर? अरे बिकॉज यस, इनवॉलेंट्री पहला टाइप क्या है? वॉलेंट्री. सेकंड टाइप क्या है? इनवॉलेंट्री, है ना. एंड सेकंड टाइप का पहला वाला क्या है? कार्डियक. सो प्लीज रीड दिस. Involuntary cardiac muscle are muscles of the heart. They work throughout the life of the person. They help pump blood in the body. काफी इजी है. कार्डियक मसल्स है ना. हार्ट, कार्डियक का मतलब, कार्डियक मींस हार्ट. ओके, कार्डियक मींस हार्ट. ओके, so cardiac muscles of the heart, they work throughout the life. जब तक आदमी या इंसान, जो भी आदमी औरत जो भी जिंदा है, तब तक ये मसल्स काम करते रहेंगे. ओके, पूरा टाइम. they help pump blood in the body. बॉडी में जो भी खून, ब्लड पंप करने का काम करते हैं. ओके, so these are cardiac muscles. you can see हार्ट के मसल्स कैसे मूव हो रहे हैं. भैया जो भी ये है ना, ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लोग ना भैया. ह्यूमन में, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हार्ट नहीं होता है. प्लांट में हार्ट होता है? नो. हाँ, तो फिर जिनके पास हार्ट होता है उनके पास कार्डियक मसल्स होते हैं. दैट्स इट. ओके,
next one. भैया can I read? Didn't you just read? अभी अभी तो आपने पढ़ा Can ना. I read? भैया सिद्धिका ने पढ़ा. Let me give. Bhaiya, I can read. I'll give Shifa a chance because Shifa is not read in the full day. Please read, Shifa. Involuntary smooth muscles. Involuntary smooth muscles. Involuntary. Involuntary smooth muscles. Very Smooth good. muscles are of those organs that work when needed. We cannot control smooth muscles. Example, muscle of stomach, muscles of lungs. Okay. So again, involuntary smooth muscles. Muscles of organs that work when needed. जब जरूरी होता है तब वो काम करते हैं. Okay. कंट्रोल हम उनको नहीं कर पाते. Examples, muscle of stomach. Okay. जब आप खाना खाते हो तब मसल स्टमक के डाइजेस्ट करके पूरा खाना डाइजेस्टिव क्या कहते हैं सिस्टम में जाके I mean it moves in the digestive system, right? खाना आपके मुंह से नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यहाँ सब जगह जाता है. क्या हम उनको कंट्रोल कर पाते हैं? नहीं. कब मूव होता है? When does it move? सिर्फ जब हम खाना खाते हैं. पूरे टाइम क्या चलता रहता? नहीं. Only when digestion happens, right? So they only work when needed. जब जरूरी होता है तभी काम करते हैं. लंग के मसल्स, look at muscles of lungs, okay? जब आपको ज्यादा सांस लेनी है तब खुद ज्यादा हो जाएंगे. क्या आप अपने लंग के मसल्स कंट्रोल करते हो? थोड़े से, मतलब सांस रोक सकते हैं बट ज्यादातर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? सो दीज आर इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स. प्लीज राइट दिस डाउन. होमवर्क. Diksha, please read the homework. Name 3 voluntary and 3 involuntary muscles. Okay. What does this mean? Homework का मतलब कोई आप बता सकते हो? Can you explain it? We have to write the names of voluntary means or skeletal muscles and 3 involuntary means cardiac or smooth muscles. Smooth muscles, very good. आपको 3 मसल्स के नाम लिखने हैं, ठीक है? मेरे को मसल्स के नाम चाहिए तो आप गूगल करके नाम ढूंढ के लिख सकते हो. ओके, डोंट गिव मी हैंड मसल्स, लेग मसल्स. मेरे को नाम चाहिए. कौन लेग के मसल का नाम, हैंड के मसल का नाम क्या है? यू कैन गूगल दीज एंड फाइंड द आंसर्स एंड सेंड देम टू मी. भैया यस. कैरिडिक का मीनिंग मैंने नहीं लिखी. सो गो. ओके, कार्डियक. बाय द वे, इट इज नॉट कैरिडिक, इट इज कार्डियक. कार्डियक का मतलब होता है हार्ट. ओके, सो आई नीड यू टू राइट द नेम्स ऑफ द मसल्स. गूगल करना और सर्च करना थोड़ा. ऐसे नहीं कि भैया हैंड मसल, लेग मसल, स्टमक मसल, नहीं. ऑन द एग्जैक्ट नेम. ओके. ओके भैया, डन. ऑलराइट, थैंक यू स्टूडेंट्स. आज के लिए क्लास यहाँ पर खत्म है.